بہت اچھے، اسلام. اگر اس دنیا میں کوئی دین ہے سب سے بہترین دین، سب سے بیسٹ دین، سب سے اچھا مذہب، سب سے سندر مذہب، سب سے بڑھیا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. یہ دین ہم تک آپ تک کیسے پہنچا؟ لوگ کہتے ہیں کہ دین تلوار کی زور سے پھیلا ہے، بم اور بارود سے پھیلا ہے، AK-47 سے پھیلا ہے. آؤ دین کیسے پھیلا؟ آؤ چلو دہلی چلتے ہیں. نظام الدین کا بارگاہ ہے، خواجہ نظام الدین دہلی میں ہے. دہلی میں آپ کا مزار ہے. حضرات محترم نظام الدین دہلوی کا زمانہ ہے. نظام الدین دہلوی کے زمانے میں آپ کی بارگاہ کے اندر ایک میٹھے پانی کا کنواں ہوا کرتا تھا. لوگ جو ہے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، میٹھا پانی بھر بھر کے، مشکیزہ بھر بھر کے اپنے گھر لے جاتے تھے. حضرات محترم ایک دن کا واقعہ ہے کہ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں. لوگ آ رہے ہیں مٹکیاں بھر بھر کے اپنا گھر لے جا رہے ہیں. نظام الدین کی نگاہ سامنے ایک مکان ہے، اس مکان پر پڑی. نظام الدین نے اپنے غلاموں سے کہا، اپنے ماننے والوں سے کہا، اپنے چاہنے والوں سے کہا، میرے غلاموں، میرے چاہنے والوں، مجھے ماننے والوں، یہ جو سامنے مکان ہے میں دیکھتا ہوں کہ سارے دلی کے لوگ میری بارگاہ میں آتے ہیں، پانی بھر بھر کے لے جاتے ہیں. یہ جو سامنے مکان ہے یہ میری بارگاہ میں کیوں نہیں آتا؟ پانی لینے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ لوگ کہتے ہیں حضور یہ جو سامنے والا مکان ہے یہ اپنا مکان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مکان نہیں ہے، یہ تو غیروں کا مکان ہے. نظام الدین نے کہا خاموش، خبردار، میں یہ نہیں پوچھتا کہ یہ مکان اپنا ہے کہ پرایا ہے. میں یہ نہیں پوچھتا کہ یہ مکان اپنا ہے یا غیروں کا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پانی لینے کے لیے میری بارگاہ کے اندر کیوں نہیں آتا؟ نظام الدین نے کہا لوگوں جاؤ پتہ کرو میری بارگاہ میں پانی لینے کے لیے کیوں نہیں آتا. کچھ لوگ گئے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ جو سامنے پڑوسی کا مکان تھا اس میں ایک مرد ایک عورت یعنی دونوں میاں بیوی رہا کرتے تھے. مرد اس کا بیمار رہتا تھا، عورت کہتی ہے میرا مرد بیمار رہتا ہے، میں اس لیے پانی لینے کے لیے نہیں جاتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مرض بڑھ جائے. حضرات محترم وہ غلام نظام الدین کی بارگاہ میں آتا ہے، کہتا ہے کہ حضور وہ جو سامنے مکان ہے اس کا جو مرد ہے وہ بہت بیمار رہتا ہے، شوہر ہے بہت بیمار رہتا ہے، اس لیے پانی لینے کے لیے نہیں آتا. حضرات محترم آپ غور کرتے چلے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام بم اور بارود سے پھیلا. آپ سنتے جائیں. غلام نے کہا حضور وہ جو سامنے مکان ہے اس کا مرد بیمار رہتا ہے، اس لیے وہ عورت پانی لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں نہیں آتی ہے. حضور نظام الدین نے کہا اچھا ٹھیک ہے. شام کا سورج غروب ہوتا ہے، رات کا پہلا پہر شروع ہوتا ہے. نظام الدین دہلوی اپنے خانقاہ کے اندر جو میٹھے پانی کا کنواں تھا، نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ اس میٹھے پانی کے کنویں سے مٹکیاں بھرتے ہیں، بھر کر کے اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں اور اس غیر مسلم کے دروازے تک چھوڑ کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں. جب صبح کا روشن نمودار ہوا وہ غیر مسلم کی بیوی اٹھی تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ پانی کا گھڑا، میٹھے پانی کا گھڑا میرے گھر کے دروازے پر رکھا ہوا ہے. وہ غیر مسلم کی بیوی میٹھے پانی کے گھڑے کو لے کر کے اپنے گھر پہنچ جاتی ہے. شوہر سے کہتی ہے دیکھو کون ایسا مسیحا ہے جو ہمارے لیے میٹھا پانی لے کر کے آیا ہے. دونوں میاں بیوی خوب پانی پیتے ہیں. حضرات محترم اب دوسرا دن شروع ہوتا ہے. حضرت نظام الدین دہلوی جو ہے پھر وہی پانی بھر کر کے اس غیر مسلم کے دروازے تک چھوڑ کے آتے ہیں. پھر جو ہے دوسرے دن کا صبح نمودار ہوتا ہے تو غیر مسلم کی بیوی اپنے شوہر کو پانی پلاتی ہے. اب شوہر نے کہا میری بیوی یہ
बता, रोजाना तेरे लिए मीठा पानी लेकर के यहाँ तक कौन आता है तो आखिर कौन है तेरा मददगार, कौन है तेरा यार जो तेरे लिए रोजाना मीठा पानी भर भर के तुम्हारे घर तक लेकर के आता है? बता कौन है, किसके साथ में तेरी सेटिंग है? हज़रात मोहतरम वो पाक दामन बीबी कहती है, ऐ मेरे शोहरे सरताज, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे किसी से कोई दोस्ती नहीं है, किसी से कोई सेटिंग नहीं है, मेरा कोई यार नहीं है। अब तीसरी रात को जब निजामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह पानी भर के उस गैर मुस्लिम के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो गैर मुस्लिम की बीवी फौरन दरवाजा खोलती है। निजामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह उस मक्की को रख करके वापस खानका आ रहे थे। अब वो बीवी कहती है, ऐ पानी लाने वाला शख्स, जरा अपना शक्ल बता करके जाओ, मेरा शोहर मुझ पर जो है मेरे दामन को धब्बा लगा रहा है, मुझ पर तोहमत लगा रहा है। अब निजामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे पलटे तो देखा कि कोई और नहीं, ये तो दिल्ली का निजामुद्दीन है, ये तो दिल्ली का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हाफिज कारी नजरुल इस्लाम साहब क़िबला, सरजमीने फकीर धारा। कोई और नहीं, ये तो दिल्ली का निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रात मोहतरम हुजूर सर निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह चले जाते हैं, शानो शौकत के साथ जो है आप बैठ जाते हैं। मुरीद लोग आए, गुलाम लोग आए, गुलामों की नजर पड़ोसी के मकान पर पड़ी तो देखा कि दोनों मियाँ बीवी जो है तेज तेज कदमों से निजामुद्दीन दहलवी की बारगाह की तरफ चली आ रही है, चले आ रहे हैं, दोनों चले आ रहे हैं। निजामुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से गुलामों ने कहा, ऐ हमारे पीरो मुर्शिद, ऐ निजामुद्दीन दहलवी, आप जिसकी बात कर रहे थे कि पानी लेने के लिए क्यों नहीं आता, वो देखो आज दोनों मियाँ बीवी आपकी बारगाह में आ रहे हैं। निजामुद्दीन ने गुलामों से कहा कि दोनों को आने दिया जाए। जब वो दोनों मियाँ बीवी निजामुद्दीन की बारगाह में पहुंचे तो मियाँ कहता है कि हुजूर सबसे पहले पढ़ना चाहता है क्या, कलमा पढ़ने के लिए तुम्हें रुपया पैसा दिया जा रहा है? उसने कहा हुजूर नहीं। तो उसने कहा फिर तू कलमा क्यों पढ़ना चाहता है? अब जवाब सुनो, सुनने मुसलमानों, वो गैर मुस्लिम कहता है करे जब दिल्ली का निजामुद्दीन ऐसा है तो मदीने का रहमतुल्लाह अलैह कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हाफिज कारी नजरुल इस्लाम साहब क़िबला, राजस्थान। अब दिल्ली का निजामुद्दीन ऐसा है तो मदीने का रहमतुल्लिल आलमीन कैसा होगा? वो शख्स जो है बारगाह निजामुद्दीन में, बारगाह कदमे निजामुद्दीन में अपने सर को झुकाते हैं और कलमा पढ़ करके मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं। आप ये नहीं कहना कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, बल्कि इस्लाम तलवार की जोर से नहीं, बम और बारूद से नहीं, निजामुद्दीन की किरदार से इस्लाम बेशक इंदल्लाहिल इस्लाम के सारे दीनों में सबसे बेहतरीन अगर कोई दीन है, बहुत खूब, लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। हज़रात दोस्त पढ़ी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह, सलाम सलाम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अंग्रेज इंग्लिश का जानने वाला, इंग्लैंड का रहने वाला अंग्रेज था। उसने कहा कि मैंने इस्लाम को इसलिए कबूल किया कि मैं एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा था, उसने एक वाकया सुनाया। वो वाकया कि मैंने एक किताब के अंदर पढ़ा कि एक मर्तबा एक सहाबी रसूल का बेटा, एक मर्तबा एक सहाबी रसूल का बेटा गुम हो गया।
कहा एक मर्तबा सहाबी रसूल का बेटा गुम हो गया। वो सहाबी बारगाह मुस्तफा में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह आज 3 दिन हो चुका है, मेरा बेटा गायब है, या रसूल अल्लाह मुझे अपने बेटे का पता बता दो, या रसूल अल्लाह मुझे अपने बेटे का पता बता दो। इतने में दूसरा साहबी रसूल आया, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने अभी इसके बेटे को बाग में बच्चे के साथ इसके बेटे को फला बाग में खेलते हुए देखा है। जैसे कि उस साहबी ने बेटे के बारे में उसको पता चला तो वो साहबी रसूल दौड़ रहा था। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि इधर आओ। वो साहबी रसूल पलटा, कहने लगा कि सुनो तुम्हारा बेटा 3 दिन से गायब है, 3 दिन से तुम्हारे बेटे का कोई आता पता नहीं है, आज तुम्हारे बेटे का पता मिला है। मुझे पता है कि तुम बाग में जाओगे तो अपने बेटे को बेटा कहके पुकारोगे, अपने बेटे को बेटा कहके पुकारोगे। साहब रसूल कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार बेटा मेरा ही तो है, अगर मैंने अपने बेटे को बेटा कहके बुलाया तो इसमें क्या हक है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे प्यारे सहाबी सुन, उस बाग में और भी कोई बच्चा खेल रहा होगा, उस बाग में कोई यतीम बच्चा खेलता होगा, अगर तुम उस यतीम के सामने अपने बेटे को बेटा कहकर बुलाओगे तो उस यतीम का दिल टूटेगा। अगर तुम उस बाग के अंदर उस अपने बेटे को बेटा कहकर बुलाओगे तो उस यतीम का दिल टूटेगा, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए अपने बेटे को बेटा कहकर के मत बुलाना। अरे नबी की सीरत यही तो है कि किसी यतीम के सामने अपने बेटे को बेटा ना पुकारो। अरे इस्लाम का यही तो सबक है कि किसी बेवा के सामने अपने बीवी से प्यार ना करो। अरे गरीब के सामने अपने दौलत की नुमाइश ना करो। वो अंग्रेज कहता है कि जब मैंने ये किताब पढ़ी तो इस किताब को पढ़ करके मैं इस्लाम कबूल कर लिया और कलमाए तैयबा पढ़ करके दीन इस्लाम में दाखिल हो। बेशक बेशक हक है। इस्लाम सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम। अगर कल जो है हमारे भानिये जलसा में मुझे जी, अगर कल हमारे भानिये जलसा में और हमारे नतीब साहब ने मुझे टाइम दिया तो इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू मैं करूंगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों को नेक अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन व आमीन। बहुत अच्छा पैदा। सुभान अल्लाह। न गोली न बंदूक न बम देखता हूँ, मैं तो ख्वाजा के दीवानों का दम देखता हूँ। अभी निजामुद्दीन औलिया के हवाले से हजरत ने एक वाकया पेश किया, एक बहुत प्यारी बात याद आ गई है। शेर बंगाल साहब निबला आपकी नजर करता हूँ कि दिल्ली की सरजमीन में निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पूरी दुनिया हाजिरी लगाने के मुतमन्नी है। वहीं पर एक औरत, एक बुढ़िया जिसकी दिली ख्वाहिश थी कि किसी दिन सरकार की बारगाह में हाजिरी हो जाए, तो एक दिन मौका आ गया और वो बुढ़िया कुछ ना मिला तो अपने हाथ में एक अंडा लेकर के सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में चली गई और ले जाकर के पेश कर दिया कि हुजूर ये अंडा लेकर आई हूं, इसी पर दम कर दीजिए। तो सरकार निजामुद्दीन औलिया ने कुछ पढ़ करके उस अंडे पर दम कर दिया। अल्लाह के वली की जुबान में तासीर क्या होती है देखिएगा। वर्धन साहब तवज्जो चाहूंगा। निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमान ने कुछ पढ़कर उस बुढ़िया के अंडे में दम कर दिया और हजरत ने कहा कि अम्मी जान अब ये अंडा लेकर वापस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए तबर्रुक है। अब वो बुढ़िया अंडा लेकर जब वापस निकली बारगाह से, जैसे ही बाहर निकली और अंडा खोल कर देखा
तो हजरत बड़ा ताज्जुब में पड़ गई वो कि वो अंडा अब अंडा नहीं रहा था, अब वो अंडा सोने का अंडा बन गया, अब वो अंडा सोने का हो गया। जैसे ही हजरत ने दम कर दिया, जैसे ही बाहर निकली तो देखा कि अंडा अब सोने का बन गया। क्योंकि दिल्ली की गुड़िया भी बड़ी चालाक होती है, ऐसे भी औरतें ऐसे मामले में बड़ी होशियार होती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो अंडा लाई थी, अब ये अंडा सोने का अंडा बन गया है। दिमाग चलाने लगी कि ये सोना हुआ कैसे, ये अंडा सोना कैसे बना। वापस जाती है हजरत की बारगाह में, वापस जाती है। जब वापस गई तो सरकार निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि अम्मी अब क्या है, अभी तो आई थी और मैंने दुआ भी कर दी है, तुम्हारा नजराना भी मैंने वापस कर दिया है, अब क्या बाकी रह गया। तो वो अम्मी कहती है कि हुजूर बात दरअसल ये है कि मैं सोच रही थी कि ये अंडा अभी आपने कुछ पढ़ के हमारे सामने दम किया तो ये सोना हो गया, तो मैं चाहता हूँ कि वो दुआ जरा हमको भी बता दीजिए ताकि बार बार आना ना पड़े। वो दुआ जरा हमको भी बता दीजिए जिस दुआ को पढ़ के आपने दम किया है और मुर्गी का अंडा सोना बन गया, तो हुजूर जरा वो दुआ हमको भी बता दीजिए ताकि बार बार हमको आना ना पड़े। तो हजरत ने कहा कि अम्मी दुआ कोई मखसूस दुआ नहीं है, मैंने बस सूरह इखलास को 3 बार पढ़ा है, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ 3 बार पढ़ के दम कर दिया और ये अंडा सोना बन गया, तुम्हारे नसीब में था, लेकर जाओ। गुड़िया तो बड़ी खुश हो गई कि अंडा भी मिला और अंडा सोना बनाने का तरीका भी मिल गया। अब वो अंडा लेकर घर गई और घर जाने के बाद रात का वक्त हुआ तो अपने शौहर से कहती है कि क्या कर रहे, उठो, गांव में जितने अंडे हैं सब जमा करो। गांव की तमाम जिस हर घर में जाकर के अंडे जमाने लगी कि आज तो सबको सोना बना ही देना, यानी करोड़पति बनने के चक्कर में वो पड़ गई, क्योंकि दुआ मिल गई थी ना हजरत ने दुआ बता दिया था। अब उसको लगा कि दुआ तो हजरत ने बता दिया है, अब मैं आज रात ही रात करोड़पति बन जाऊंगी। शौहर को कहा कि गांव में जितने अंडे हैं सब जमा करो। तमाम गांव के अंडे जमा कर लिए गए। रात को दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद करके दोनों मियां बीवी नहा धोकर पाक साफ होकर सारे अंडों को सामने रखा और अपने शौहर से भी कहा, खुद भी पढ़ने लगी कि हजरत ने दुआ बताया है, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है और पढ़ के इस पे दम करना है। तो शौहर ने कहा कि इससे होगा क्या, कहा कि आप बस पढ़िए तो सही, क्या होगा ये आपको बाद में पता चलेगा। मियां भी पढ़ रहा है, बीवी भी पढ़ रही है। रात को शुरू किया था हजरत 1 घंटा 2 घंटा पढ़े जा रही है 2 घंटा बाद कपड़ा हटा कर देखा तो सोना तो बनना दूर की बात था, अंडे का कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब ये परेशान हो गई कि बात क्या है, यही दुआ तो हजरत ने बताया था, आखिर इसमें बात क्या है कि हजरत ने सिर्फ 1 बार पढ़ा तो वो अंडा सोना बन गया और हम 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे दोनों मियां बीवी पढ़े जा रहे हैं और यहाँ तक के मुंह में थूक भी खत्म हो गए। थूक क्या रहे थे, थूक निकल रही थी। आधी रात खत्म कर दिया, अंडे का कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो बुढ़िया कहती है कि हिम्मत नहीं हारना है, अभी आधी रात बाकी है, चलो पढ़ते रहो। रात भर पढ़ते रहे, रात भर दम करते रहे। सुबह फजर के वक्त फिर कपड़ा हटा कर देखा तो वो अंडा जैसे का वैसे ही था। आखिरकार बुढ़िया मायूस हो गई। दूसरे दिन वो अंडे लेकर फिर सरकार की बारगाह में गई। हजरत ने कहा कि अम्मी क्या जान है, क्या बात है, कल तो आई थी, आज फिर वापस आई हो, आज क्या लेना है। बुढ़िया कहने लगी, हुजूर कल जो आपने दुआ बताई थी ऐसा लगता है कि दुआ आपने गलत बता दिया है, ऐसा लगता है कि गलत दुआ आपने बता दिया है। कहा कि मामला क्या है, कहा कि मामला ये है कि आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था और ये अंडा सोना बन गया और हम दोनों मियां बीवी तो रात भर पढ़ रहे हैं, फिर भी अंडे का कलर नहीं चेंज हो रहा है। तो सरकार निजामुद्दीन औलिया मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर कहा कि अम्मी जान बात आप समझे नहीं, अम्मी जान दुआ तो आप लेकर गए थे पर मेरी जुबान तो मेरे पास रह गई। दुआ तो आप ले गए थे पर मेरी जुबान तो मेरे पास रह गई। तो अम्मी जान खाली दुआ से काम नहीं चलेगा, पहले दुआ पढ़ने के लिए अपनी जुबान को भी तो पाक करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारी जुबान में वो तासीर पैदा होगी। तो मुसलमानों, अल्लाह वालों की जुबान में खुदा ने वो तासीर रखी है कि तकदीरें लोगों की बदल जाती है। वही आयतें कोई अल्लाह वाला पढ़कर दम कर देता है तो अंडा सोना बन जाता है। हम पढ़ते हैं कुछ नहीं होता। बात क्या है, बात यह है कि हम अपनी जुबान को पाक नहीं रख पाते। अरे जिस जुबान से दिन में 1000 गालियां निकलती हो, जो जुबान दिन भर चुगलखोरियां करती हो, उस जुबान में तासीर कहां से आएगी। तो पैगाम की सीरत मुस्तफा से लेकर जाओ कि दोस्त, जहां हमें हलाल रोजी खानी है वहीं पर हमें हक बात भी
بولنا ہے، سچ بات بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، چغلی غیبت سے پرہیز کرنا ہے، تب جا کر ہماری باتوں میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ اسی سے دین اسلام پھیلتا ہے۔ حضرات ماحول بہت اچھا ہے، بہت سنجیدہ ماحول میں آپ لوگ سن رہے ہیں۔ ایسی سماعت ہر جگہ نہیں ملتی، اور جب لوگ دھیان سے سنتے ہو نا تو کچھ بولنے کا بھی من کرتا ہے۔ ابھی بہت اچھی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس ماحول کو اور گلے گلزار بنایا جائے، کیونکہ حضرات اس نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی رات کا کیا کہنا ہے، جہاں پر چاند چمک رہا ہے، ستارے مسکرا رہے ہیں، انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے، نور کی فوہاریں پڑ رہی ہے، عجب سما ہے، عجب گھڑی ہے، عجب منظر ہے۔ ایسا منظر تو پہلے کبھی فقیر دھارا میں دیکھا نہیں گیا۔ تاریکیاں چھٹ گئی ہے، روشنیاں بکھر گئی ہے، ارے سارا عالم دودھ میں نہایا ہوا ہے، سرے سرے پہ مستی چھا گئی ہے۔ ہاں ہاں، یہ اجلا اجلا سا سما، یہ مہکی مہکی سی فضائیں سب جھوم کر کہتی ہے کیا کہ آج موسم بھی ہے، گھٹا بھی ہے۔ موسم ہی کی بات کرو جس سے ملے سرکار مدینہ، اس ساقی کی بات کرو جن کا ایمان ہے مردہ یارو ان کو رہنے دو۔ ارے زندہ دلوں میں ہم زندہ دل ہیں، زندہ دلی کی بات کرو، یعنی کہ نعت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سننے کے لیے آپ گوشت بر آواز ہو جائیے۔ پھر میں اس عظیم لہجے کو آواز دینا چاہتا ہوں، یعنی بانی جلسہ شاعر اسلام جناب مزمل حسین کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ حضرات ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر نعت پڑھتا ہے۔ اب آپ لوگ ثواب کی نیت سے ایک بار کہتے مچل کر سبحان اللہ، اور مچل کر کہیں یا رسول اللہ۔ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر نعت پڑھتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، اور جب پڑھتا ہے کوئی نعت نبی تو سمجھو وہ عبادت کر لیتا ہے۔ تو آئیے جناب مزمل حسین صاحب اور ان کا استقبال نعروں سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، سرزمین فقیر دھارا، علاقہ گوال پوکھر، مولانا مزمل حسین صاحب دیناج پوری۔ ممبر نور پر تشریف فرما جملہ جنتی علماء کرام و شعراء اعظام و سامعین کرام، عزیز بچوں، بالخصوص مفکر اسلام حضرت علامہ و مولانا اظہر جلیل صاحب قبلہ، نقیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا جناب فضل عالم خوشتر دیناج پوری صاحب قبلہ، مقرر بے مثال حضرت علامہ مولانا جناب شیخ محمد صاحب قبلہ، اور یہ دیگر ہمارے سامعین علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس سرزمین فقیر دھارا والوں کو کہ انہوں نے جو 10 آدمی ہیں انہوں نے مل کر جو ہے اس چھوٹے سے گاؤں میں، چھوٹی سی گاؤں میں جو ہے سیرت مصطفیٰ کانفرنس کو رکھا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں مولا ان سبوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف عطا فرمائے، اور جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سبوں کی بھی مغفرت عطا فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین اس مجلس میں حاضر ہیں مولا پاک پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سبوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے ناجس پردھان صاحب کو، جنہوں نے محنت بھی کی ہے اور دھیان بھی دیا، حوصلہ بھی افزائی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ بنگلہ انداز میں درود پاک پڑھے، اللہم
کہ اوگا خدای দয়া করা নাসিব করা মদিনা कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला हम सबों को मक्के और मदीने की ज़ियारत नसीब करे। मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह कि दोगा खुदाई दया करा नसीब करा मदीना और नबी छाड़ा কবরে একাই থাকতে পারবো না। সুবহানাল্লাহ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা শাফিনা खैर आवाज़ फंसी हुई है, लेकिन आप लोग की दुआ जो है मेरे साथ है। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा दुरूद पाक अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जन्नत में भी ढूंढेगा दरबार मदीने का, जन्नत में भी ढूंढेगा दरबार मदीने का। दोनों हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह कि जन्नत में भी ढूंढेगा दरबार मदीने का, जन्नत में भी ढूंढेगा दरबार मदीने का, कि जन्नत में भी ढूंढेगा दरबार मदीने का, जन्नत में भी ढूंढेगा दरबार मदीने का। कि किस्मत से किया जिसने, किस्मत से किया जिसने दीदार मदीने का, वाह वाह बेशक बेशक किस्मत से किया जिसने दीदार मदीने का, वाह मदीने का, किस्मत से किया जिसने दीदार मदीने का, जन्नत में भी ढूंढेगा दरबार मदीने का। और इनको मैं रात को कदम को चूमती हुई ये शेर पहुंचा रहा फरमाए, जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह कि जन्नत में भी ढूंढेगा दरबार मदीने का, किस्मत से किया जिसने दीदार मदीने का। कि दुनिया के मसीहा भी मांगेंगे शिफाओं से, दुनिया के मसीहा भी मांगेंगे शिफाओं से, कि दुनिया के मसीहा भी मांगेंगे शिफाओं से, दुनिया के मसीहा भी मांगेंगे शिफाओं से। कि जो शख्स हुआ बीमार, जो शख्स हुआ दिल से बीमार मदीने का, जो शख्स हुआ दिल से बीमार मदीने का, कि दुनिया के मसीहा भी मांगे कि शिफाओं से, दुनिया के मसीहा भी मांगे कि शिफाओं से। जो शख्स हुआ दिल से, जो शख्स हुआ दिल से बीमार मदीने का, जो शख्स हुआ दिल से
माशाअल्लाह। जन्नत में भी ढूंढेगा दरबा मदीने का, जन्नत में भी ढूंढेगा दरबा मदीने का। और आशिक़ रसूल की क्या ख्वाहिश होती है, मुरादा फरमाए। हर आशिक़ रसूल यही चाहता है कि सबसे गुंबद को आप अपने नजरों बेशक बेशक बेशक। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए, या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए। वाह वाह बेशक। कि या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए, या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए, या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए, या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए, या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए। हो सामने गुंबदिया, हो सामने गुंबदिया मीनार मदीने का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस शायर इस्लाम जनाबे मुजम्मिल हुसैन दिनाजपुरी। सुभान अल्लाह, कितना अच्छा शेर है। किसी ने क्या खूब कहा है कि दिखा दे या इलाही मदीना वो कैसी बस्ती है जहां पर रात और दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या इलाही अता कर दे खैरात मदीने की, लिख दे हम सब के किस्मत में एक रात मदीने की। माशाअल्लाह। बेशक। दुआ है अल्लाह पाक के मौला हम सबों को मक्के मदीने की ज़ियारत से फरमा दे। बेशक। कह दीजिए बदल के सुभान अल्लाह। कि या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए, या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए, या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए, या रब ये तमन्ना है जब मौत मुझे आए। हो सामने गुंबदिया, हो सामने गुंबदिया मीनार मदीने का, हो सामने गुंबदिया मीनार मदीने का। जन्नत में भी ढूंढेगा दरबा मदीने का, किस्मत से किया जिसने दीदार मदीने का। टाइम का नहीं है, बस 2 मिनट आप तक पहुंचाऊंगा। एक बार दुर्गा पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यकीनन जो रसूल के जो है महफिल को सजाता है, कसम खुदा की मुसलमानों मेरे नबी उस मजलिस में खुद तशरीफ फरमा होते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब मेरे मुस्तफ़ा हम सबों के, हम मुस्तफ़ा की नजरों के सामने हम हो तो हम कितने ही खुश नसीब हैं। कम से कम इस महफिल में बैठकर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जितनी देर तक आप कहते रहेंगे उतनी ही देर जो है आपके नीतियों में जो है इजाफा होता रहेगा। बचल के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। कि जो नाते पा की महफिल सजाने वाले हैं, जो नाते पा की महफिल सजाने वाले हैं, जो नाते पा की महफिल सजाने वाले हैं, उन्हें हुजूर मदीना बुलाने
लाख बिगाड़े हमें नहीं परवाह। वाह, वाह। इस दौर में जो है परेशान है, बेशक क्योंकि मोदी आकर के जो है इंसान को परेशानी में डाल दिया। लेकिन हम वो आशिक रसूल है, इस जमाने से हम लोग परवाह नहीं करते हैं। क्यों? जरा शेर मुनाजा कर दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़माना लाख बिगाड़े हमें नहीं परवाह। ज़माना लाख बिगाड़े हमें नहीं परवाह। क्यों? मेरे नबी मेरी बिगड़ी बनाने वाले हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी मेरी बिगड़ी बनाने वाले हैं। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बहुत ही प्यारा शेर पहुंच रहा मुलाजा फरमाए। हम चले चलते हैं करबला के मैदान पर। क्या शेर मुलाजा फरमाए, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि हुसैन बोले, हुसैन बोले, हुसैन बोले के यजीद मिटा न पाओगे। हुसैन बोले के यजीद मिटा न पाओगे। हुसैन बोले के यजीद मिटा न पाओगे। क्यों? मेरे नबी के दीन, नबी के दीन पे हम सर कटाने वाले हैं। नबी के दीन पे हम सर कटाने वाले हैं। फरमाइश है। करते पकड़े अल्लाहुम्मा वलाले सैयदना शफीअना मोहम्मद के गोगा खुदा। ये हमारे प्रधान साहब के ख्वाहिश है, अगर वो जो हुक्म करते हो मेरे सर आंखों पर है। लेकिन जरा वचन के कह दिए सुभान अल्लाह। के ओगा खुदा दया करा नासिब करा मदीना। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। के ओगा खुदा दया करो नासिब करो मदीना। और नबी छाराय कब्रे मौला एक ठगते पर बोला। कि इसलिए हम यहाँ दामन को बिछा लेते हैं। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। के कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्योंकि आप लोगों की जो दुआ करते हैं ना हमेशा में आपकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। बस एक मिसरा पहुंचा रहा हूँ कि इसलिए हम यहाँ दामन को बिछा देते हैं। जरा वचन के कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि इसलिए हम यहाँ दामन को बिछा देते हैं। कि इसलिए हम यहाँ इसलिए हम यहाँ दामन को बिछा देते हैं। इसलिए हम यहाँ दामन को बिछा
आप जब देते हैं, कि आप जब देते हैं औरों से जुदा देते, कि आप जब देते हैं औरों से जुदा देते हैं, कि आप जब देते हैं औरों से जुदा देते हैं। हजरात हम लोग कम नहीं है, हम लोग को डरना नहीं चाहिए। शेर क्या कहता है, जरा बचन के कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि हमको छेड़ा न करो, हम है मुजाहिद वाले, हमको छेड़ा न करो, हम है मुजाहिद वाले, कि हमको छेड़ा न करो, हम है बरेली वाले, हमको छेड़ा न करो, हम है बरेली वाले, कि हमको छेड़ा न करो, हमको छेड़ा न करो, हम है मुजाहिद वाले, हमको छेड़ा न करो, हम है बरेली वाले, कि रन में जब आए तो, रन में जब आए तो, कि हमको छेड़ा न करो, हम है मुजाहिद वाले, हमको छेड़ा न करो, हम है बरेली वाले, कि रन में आ जाए तो, रन में आ जाए तो कोहरा मचा देते हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मौलाना मुजम्मिल हुसैन दिनाजपुरी, कि रन में आ जाए तो कोहरा मचा देते हैं। इंशाअल्लाह अजीज कल बात परसों बाबू हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। औले इकराम के मर्तबा क्या है वो इतना कोई नहीं जानता, उन लोग के मर्तबे के काबिल हम लोग नहीं है, क्योंकि आज जो है ख्वाजा पिया जो है पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, है कि नहीं? जरा बदल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। और हाजी अली मुंबई के सरजमीन पर जो है वो पूरे समंदर पे राज करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि औलिया इकराम मादल्ला मर के मिट्टी में मिल गए, है कि नहीं? जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है कि ये खुदा वाले हैं, उनसे नहीं उलझे कोई, वो खुदा वाले हैं, उनसे नहीं उलझे कोई, ये खुदा वाले हैं, ये खुदा वाले हैं, उनसे नहीं उलझे कोई, कि वो खुदा वाले हैं, वो खुदा वाले हैं, उनसे नहीं उलझे कोई। क्यों? कि रास्ता बीच समंदर में बना लेते हैं, कि रास्ता बीच समंदर में बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। हजरात थोड़ी देर और आप बैठे, बहुत अच्छा माहौल जनाब मौलाना मुजम्मिल हुसैन साहब क़िबला ने बना दिया है। इस कैफ सुरूर के माहौल में बस इतना कहूँगा कि नात की महफिल का असर देख रहे हैं, ये नात की महफिल का असर देख रहे हैं, एक नूर का आलम है जिधर देख रहे हैं। ये नात की महफिल का असर देख रहे हैं, एक नूर का आलम है जिधर देख रहे हैं। सब देखते हैं ज़ौक़े तलब, हुस्ने तलब से, और हम तो देखने वालों की नजर देख रहे हैं। सब देखते हैं ज़ौक़े तलब, हुस्ने तलब से, हम तो देखने वालों की नजर देख रहे हैं। आला हजरत के हवाले से
मुज़म्मिल हुसैन साहब ने शेर पेश किया। एक शेर हाजिर करता हूं कि हजरात, तेरी तलब से तेरी सोच से सिवा देगा, तेरी तलब से तेरी सोच से सिवा देगा, जो दे सके ना जमाना वो मुस्तफा देगा। तेरी तलब से तेरी सोच से सिवा देगा, जो दे सके ना जमाना वो मुस्तफा देगा। और जहां से चाहे जालिम तू सवाल करता जा, जहां से चाहे जालिम तू सवाल करता जा, जवाब तुझको बरेली का इमाम अहमद रजा देगा। जवाब तुझको बरेली का इमाम